Praise the Lord. If you need the word of God, you have to be in the fellowship of याद God. रखिए मेरे प्रियो, अगर आपको परमेश्वर का वचन चाहिए तो आपको संगति में शामिल होना है। Fellowship with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ संगति करना है। Fellowship in the house of God. परमेश्वर के भवन में संगति करना है। And fellowship with the believers. और विश्वासियों के साथ संगति करना है। Amen. आमीन। That's how the kingdom of God operates. इसी तरह परमेश्वर का राज्य कार्य करता है। Don't miss the fellowship with the Holy Spirit. और सचमुच आप अपने जीवन में से ना गवाएं कि आपकी संगति पवित्र आत्मा के साथ खो जाए। Amen. हालेलुया। Amen. हालेलुया। Sometimes people are doing fellowship in the church, but they are missing the fellowship with the Holy Spirit. कई बार लोग कलीसिया में तो संगति करते हैं, परंतु सचमुच पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं करते। Hallelujah. Hallelujah. When they will have the fellowship with the Holy और Spirit, जब उनकी संगति पवित्र आत्मा के साथ होती the है, name of God will be revealed in their life. हालेलुया, उनके जीवन में परमेश्वर का जो नाम है वो प्रकट हो जाता The है। name Jesus will become more powerful in their life. उनके जीवन में यीशु का नाम और सामर्थी हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। In these days, you are receiving the anointing of the Holy Spirit in full measures. इन दिनों आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को बहुतायत से पा रहे हैं। He is your Jehovah Jireh. याद रखिए, वही आपका वो परमेश्वर है, यहोवा यीरे। Amen. हालेलुया। Amen. हालेलुया। He is the Lord who provides you. वो ये प्रभु है कि जो आपकी जरूरतों को पूर्ण करते हैं। Because the Holy Spirit has revealed the name Jehovah Jireh in your life. क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में उनके नाम को प्रकट किया और उनका नाम है यहोवा यीरे। Praise the Lord. हालेलुया। Amen. आमीन। Because you had the fellowship with the anointing of the Holy Spirit. इसलिए ऐसा हुआ कि आपकी संगति है पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ। Amen. आमीन। If you have no anointing of the Holy Spirit, God cannot reveal His name in your life. याद रखिए मेरे प्रिय, अगर आपकी पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं है तो सचमुच परमेश्वर अपने नाम को नहीं प्रकट करेंगे। Amen. आमीन। Only you can hear about His name, but the name will never come and appear before you. याद रखिए, आप नाम को तो सुनेंगे परंतु उनका नाम स्वयं आपके जीवन में प्रकट होकर कार्य नहीं कर पाएगा। The day when the names will be revealed in your life and the name of God will come into your life, automatically things will move in your favor. हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर का नाम आपके जीवन में प्रकट होता चला जाएगा मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर की कृपा आ जाएगी। And your covenant with God will become more strong day by day, and you will become more strong in the presence of God. और सचमुच मेरे प्रियो, आपका जो वाचा है परमेश्वर के साथ वो और मजबूत होता चले जाएगा हर गुजरते हुए दिन के साथ। Praise the Lord. Praise the Lord. If your fellowship with the Holy Spirit is strong, the name of God will be revealed in your life. अगर सचमुच आपका जो संगति है पवित्र आत्मा के साथ वो मजबूत होगा तो याद रखिए उनके नाम को आप और नजदीकता से जानेंगे। If you have a fellowship of God strong in the house of God, you will receive the word from heaven. याद रखिए, अगर आपकी संगति परमेश्वर के साथ कलीसिया में मजबूत होती है तो आप निश्चय ही स्वर्ग से वचनों को पाएंगे। And that word will you will know the season and the timing of God. याद रखिए, उस वचन के द्वारा आप परमेश्वर के उस समय को और निर्धारित मौसम को भी जान जाएंगे। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. And if your fellowship is with the believers, और अगर आपकी संगति विश्वासियों के साथ होगी, what will happen? आपको मालूम क्या होगा? You will get more people to pray for your request. आपको और भी लोग मसीह की देह मिल जाएंगे जो आपकी प्रार्थनाओं के लिए आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Amen. आमीन। Thousands of people will be there with you praying for your needs. हालेलुया। हजारों लोग शामिल होंगे आपकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करने के Today, लिए। for your prayer request, almost like 20 to 25 people in the house of God, they are praying for you. ये क्या कम बड़ी बात है कि परमेश्वर के भवन में स्वयं 20 से 25 जन एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Almost 50 people are praying for the 50 family. लोग लगातार निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। Amen. आमीन। How can you say that, brother, that people are praying for us? आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि ये मुझे कैसे मालूम पड़े कि सचमुच लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Yes. Because the church teaches the believer that you must pray. सच ये सत्य है क्योंकि कलीसिया ही लोगों को सिखाती है प्रार्थना करने के लिए। Amen. आमीन। And the Holy Spirit uses those people who pray.
और पवित्र आत्मा उन्हीं व्यक्तियों को इस्तेमाल करते हैं जो सचमुच प्रार्थना में है, यानी कि प्रार्थना योद्धा है। Praise the Lord. Hallelujah. And I believe that people are praying for your children, praying for your Hallelujah. business, praying for your house, and Hallelujah. God will do wonders and miracle in your life. मैं विश्वास करता हूँ कि इन दिनों सचमुच आपके सारे लोग एक दूसरे के लिए, कलीसिया के लिए, आपके परिवारों के लिए, आपके बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। Because we are fulfilling that command, the Bible says, pray for one another so that you may be healed. क्योंकि वो जो आज्ञा हमें मिली है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि आप चंगे हो जाएं। Hallelujah. Hallelujah. So in this season, God is revealing His name. और इस समय, ये जो निर्धारित समय है, परमेश्वर अपने नाम को आपके जीवन में प्रकट कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। On Sunday He revealed His name, Jehovah Jireh. हालेलुया। रविवार को उन्होंने अपने उस नाम को प्रकट किया, यहोवा ईरे। Amen. आमीन। And today और He's going to reveal His name, Jehovah Rapha. हालेलुया। आज सचमुच वो अपने उस नाम को प्रकट करेंगे, यहोवा राफा, यानी चंगा करने वाला परमेश्वर। Hallelujah. Hallelujah. Say everybody, He is the Lord who is going to heal me completely. सचमुच आप लोग कह दे अपने मुख से कि ये वही परमेश्वर है जो हमें चंगाई दे रहा है। Amen. हालेलुया। Healing will come in your wounds. याद रखिए, आपके जितने भी जख्म हैं, दर्द हैं, उसमें चंगाइयां आ रही हैं। Healing will come in your pain. आपके दर्दों में चंगाइयां आ रही हैं। The healing power will go deeper into your wounds. सचमुच मेरे प्रियो, चंगाई का जो सामर्थ्य है आपके उन जख्मों में गहराई से उतर जाएगा। Through the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा It will come like an oil and it will go inside into your wounds. वो एक तेल के समान आके आपके जख्मों पे उतर जाएगा। Amen. आमीन। Because He is the Lord who healeth you. क्योंकि ये वही परमेश्वर है जो आपको चंगा करता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise How many the of you Lord. believe it that Jesus is going to heal us completely? कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आपको संपूर्ण रीति से चंगाई दे देंगे? When you believe in the Lord Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, when you gave your life to Jesus Christ, जब आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, you have the right to receive the healing from God. आपको वो अधिकार मिल जाता है कि आप अपने चंगाई को परमेश्वर से प्राप्त करें। When Jesus was there in the world, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में people मौजूद थे, came to Him लोग उनके पास आए, and they begged Him to lay His hands upon them. उन्होंने उनसे भीख मांगा कि प्रभु हमें चंगाई दे दे। They asked Him in mercy, Lord, lay your hands upon our lives so that उनकी we दया may. को मांगा और कहा कि प्रभु तो अपने हाथ को रख दे, हम चंगे हो जाएंगे। And the Lord Jesus और प्रभु यीशु laid His hands upon every sick people, और अपने हाथों को हर एक बीमारी व्यक्तियों पे लगा देते थे and they were all healed. और सारे लोग चंगे हो जाते That थे। was the Bible says. यही तो बाइबल कहती है। And we are seeing from almost from 20 years I'm in the ministry, I'm seeing in every area of my life the Lord Jesus heals the sick people. हालेलुया। और अपने 20 वर्ष की सेविकाएं में मैंने अपने आंखों से देखा है कि किस तरह से प्रभु ने लोगों को चंगाइयां दी। Because He says, I am the Lord who heals you. क्योंकि वो स्वयं कहता है कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो चंगा करता है। Hallelujah. आमीन। The Bible says, बाइबल यूं कहती है, Luke chapter 4 and verse 40. लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 40वें वचन की The ओर। Bible says, when the evening came, और बाइबल यूं कहती है, जब शाम आया, everyone who were sick हर with लोग some ailment or other brought them to Him one by one, and He placed His hands on them and He healed them all. जितने लोग बीमारियों से ग्रस्त थे उन्हें लाया गया प्रभु यीशु के पास और प्रभु यीशु अपने हाथ को उनके ऊपर रखते गए और वो चंगे होते गए। Bible says when evening came. बाइबल यूं कहती है, जब शाम आ गया। I take this word today Yes. and I pray today evening that everyone who are joining me, they will be healed in the name of हालेलुया। Jesus. आज के शाम के समय जितने लोग आज मेरे साथ शामिल हैं वो अपनी चंगाइयों को ले रहे हैं। Amen. आमीन। Before you receive the favor of God, God is going to heal you completely. Praise the Lord. Praise the Lord। Healing in your wounds.
सचमुच चंगाई आपके जख्मों पर, healing in your emotions, आपके भावनाओं पे चंगाई, healing in your physical bodies, आपके शारीरिक शरीर में चंगाई, healing in your business, आपके व्यवसाय में चंगाई, healing in your land, आपके जमीनों पे चंगाई, and healing in your spiritual life. आपके आत्मिक जीवन में चंगाई। Healing river is flowing. सचमुच वो चंगाई की नदी बह रही है। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Healing power will flow. सचमुच चंगाई का सामर्थ बहेगा आपके जीवन। Amen. आमीन। Amen. Amen. How many of you believe it? कितने लोग विश्वास करते How हैं? many of you believe it? आप में से कितने लोग विश्वास How करते many of हैं? you believe it? कितने लोग विश्वास करते हैं? Hallelujah. Thank you. You might be saying that I'm not sick, brother. I'm not sick, sister. ये सत्य है। आप कह सकते हैं, अरे मैं तो बीमार नहीं हूँ। हालेलुया। Healing is not only for the sick people. ऐसा नहीं है कि ये जो चंगाई है सिर्फ बीमारियों के लिए ही नहीं है। Healing in your land. आपके जमीनों की भी चंगाई, Healing in every area of your life. आपके जीवन के हर एक क्षेत्रों में चंगाई। Amen. आमीन। Healing in your finances also. आपके आर्थिक धन पर भी चंगाई। Hallelujah. Hallelujah. The Bible says he laid his hands upon sick people and they were all healed. और बाइबल यूं कहती है कि यीशु मसीह ने अपने हाथ को सचमुच बीमारों के ऊपर रखा और वो चंगे हो गए। When I read this scripture, और जब इस वचन को मैं पढ़ता हूँ, it says one by one he laid his hands. यीशु मसीह एक एक करके लोगों के ऊपर अपने हाथों को रखते गए और लोग चंगे होते Say गए। everybody, one by one the hand of Jesus will come upon everybody's life. थैंक यू। Hallelujah. आप कह दे कि एक एक कर कर यीशु मसीह अपने हाथों को एक एक के ऊपर रख देंगे और वो चंगे हो जाएंगे। Hallelujah. आमीन। For example, उदाहरण के तौर पर me and Ritu is sitting here. आपको पता है? हालेलुया। Hallelujah. यस। And the Lord Jesus comes. और प्रभु यीशु आते हैं He laid his hands on me. और वो अपने हाथ को मेरे ऊपर रखते हैं। And then he laid his hands here. हालेलुया। और फिर अपने हाथ को मेरे ऊपर रखते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। I am healed. मैं चंगा हो गया। She is healed. मैं चंगी हो गई। Praise God. हालेलुया। Amen. हालेलुया। And whoever will be there, they will all heal automatically. और जो लोग भी मौजूद हैं वो अपने आप चंगे हो जाएंगे। Now the river is flowing. क्योंकि वो नदी बह रही है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Only you have to say yes, I believe it. आपको तो बस इतना ही कहना है कि हाँ प्रभु मैंने तो विश्वास कर लिया। I am healed. मैं चंगा हो गया। I am healed from this issue. मेरी जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुद्दा है, उससे तो मैं चंगा हो गया। Praise God. आमीन। Amen. Thank you. Hallelujah. Praise God. Thank you. And I pray that the healing power will flow in every area of your life. मैं सचमुच प्रार्थना करता हूँ कि जो चंगाई का जो सामर्थ्य हर एक के जीवन में बहने वाला। Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 So let us look into the word of God. आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन और उसकी ओर चलते हैं। Amen. आमीन। The Bible says in Exodus chapter 15 and verse 22 onwards, I'm going to read. और परमेश्वर का वचन निर्गमन उसकी पुस्तक 15वें अध्याय के 22वें वचन की ओर से हम बढ़ेंगे। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. आमीन। Now listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। Amen. हालेलुया। Before the Lord revealed to them that I am the Lord who healeth you, इसके पहले कि परमेश्वर इस बात का प्रकटीकरण करते कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो चंगाई देता है, He proved to the people of Israelites that He is a God of covenant. वो इजरायली लोगों को इस बात को जता देते हैं कि मैं वाचा को पूर्ण करने वाला परमेश्वर हूँ। He says, I am the God who never breaks the covenant. और वो इस बात को बताते हैं कि मैं वो परमेश्वर हूँ कि मैं मेरी वाचा को कभी नहीं तोड़ता। Amen. आमीन। He spoke to Abraham and He says that I will make a covenant with you. उन्होंने अब्राहम से कहा कि मैं तेरे साथ वाचा बनाता हूँ। And in Genesis chapter 15 and verse 13, He says, your people will live in a land which is not their land for 400 years, and thereafterwards I will bring them out of that land. और वहां पे उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ये कहते हैं कि तेरे लोग उस भूमि पे होंगे, 400 वर्षों के लिए होंगे और फिर मैं उन्हें वहां से निकाल के लाऊंगा। Amen. आमीन। That's how God sent Moses. और इसी तरह से परमेश्वर ने मूसा को भेजा After 400 years. 400 वर्ष के बाद। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. आमीन। After 400 years. 400 वर्ष के बाद
God spoke to Moses परमेश्वर ने मूसा से बात किया and he appeared to him और उसके सामने प्रकट हुआ and he said, Moses, और कहा, मूसा, you are standing on the holy ground. तू सचमुच पवित्र जमीन पर खड़ा है। I am the God of your father. मैं वो परमेश्वर हूँ तेरे पिता का। I am the God of Abraham, Isaac and Israel. मैं वही परमेश्वर हूँ अब्राहम का, इसहाक का। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And he says, I heard the cries of my people. और उसने कहा, प्रभु ने कहा कि मैंने अपने लोगों के आंसुओं को, उनकी आवाज को सुनी है। I heard, I have seen their sorrows. मैंने उनके दुखों को देखा है। I have seen their slaveries. मैंने उनकी बंधुआई को देखा है। I heard their cries. मैंने उनके आंसुओं को सुना है। That's why I came down from heaven. इसी से मैं स्वर्ग से उतर के आया हूँ। And I'm sending you so that you can bring them out of Egypt. और मैं मूसा तुझे भेजता हूँ ताकि तू मेरे लोगों को वहाँ से छुड़ा के लाए। Then Moses said, तब मूसा ने कहा, Who are you? आप कौन हैं? What is your name? आपका नाम क्या है? He said, I am who I am. तब परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूँ मैं वो हूँ। He said, I am who I am. मैं जो हूँ मैं वो हूँ। Hallelujah. Hallelujah, He Jesus. says, I am who I am. और वो कहते हैं कि मैं वही हूँ जो मैं हूँ। And then he says to Moses, what is there in your hand? और मूसा से कहता है, मूसा तेरे हाथ में क्या है? He says, I have a staff. उसने कहा, मेरे पास एक लकड़ी की छड़ी है। He says, throw it. और प्रभु ने कहा, उसे फेंक कर दिखाओ। And that staff turned into a snake. और उसी वक्त वो लकड़ी की जो छड़ी थी, उसी वक्त सांप बन जाता है। Amen. हालेलुया। Amen. आमीन। And Moses was scared to see the snake. हालेलुया। और मूसा डर गया सांप को देख के। And then he says, और तब परमेश्वर की आत्मा ने कहा, go and pick up that snake. जा उस सांप को तू उठा ले। Amen. आमीन। Now listen, God is talking. देखिए यहाँ पर परमेश्वर मूसा से बातचीत कर रहे हैं। And Moses has to operate. और यहाँ पे मूसा को उन आज्ञाओं के अनुसार चल के करके दिखाना है। Hallelujah. हालेलुया। And he picked up that snake. और उसी वक्त मूसा ने उस सांप को उठाया। And that snake turned into a staff. और फिर क्या होता है, वो सांप उसी वक्त फिर से लकड़ी बन जाता Now है। listen very बड़े carefully. ध्यान से सुनिए इस बात को। He was hearing the word. मूसा वचनों को सुन रहा है। He's hearing the voice of God. वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा But है। God is using the hand of Moses. लेकिन परमेश्वर क्या कर रहे हैं कि मूसा के हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Today I want to ask you one thing, my dear GRPC family. आज मेरे प्रिय GRPC के परिवार के जन, मुझे आपसे एक सवाल करना है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। Say everybody, God is going to use my hands. आप कहिए अपने मुख से कि परमेश्वर मेरे हाथ को इस्तेमाल करेंगे। Praise the Lord. हालेलुया। Say my hand is a blessing hand. आप कहिए कि जो मेरा हाथ है वो आशीष का हाथ है। When I will lift up my hands, I will get the victory. जब मैं अपने हाथों को उठाऊंगा तो मैं सचमुच उस जयवंत को देखूंगा। When I will lay my hands, sick people will be healed. मैं अपने हाथ को जब बीमारियों के ऊपर रखूंगा तो बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। If I will lay my hands upon my children, they will be healed. They will be blessed. अगर मैं मेरे हाथ को अपने बच्चों के ऊपर रखूंगा तो वो चंगे हो जाएंगे, वो आशीषित हो जाएंगे। Praise the Lord. Praise the In the Lord. same manner, God used the hand of Moses. उसी तरह से परमेश्वर ने मूसा के हाथ का इस्तेमाल He gave the power in the hand. और उन्होंने वो सामर्थ मूसा के हाथ में दे दिया। Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says, और बाइबल यूं कहती है, God used His mighty hand to bring the people of Israelites out of Egypt. बाइबल यूं कहती है कि परमेश्वर ने अपने सामर्थी हाथ का इस्तेमाल किया कि अपने लोगों को मूसा के द्वारा उस बंधुआई से मिस्र देश से निकाल के लाया। Hallelujah. Hallelujah. When He thrown His stick, और जैसे उसने उस लकड़ी को फेंका, amen, He turned into snake. उसी वक्त सांप बन गया। Maybe He was feeling some power in His hands. हाँ, हो सकता है कि मूसा ने उसी वक्त परमेश्वर के सामर्थ को अपने हाथ में महसूस किया। He felt that the presence of God is there in my body. और उसने महसूस किया कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके शरीर में मौजूद है। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। And that gave him a courage to go move and Hallelujah. took that snake and it turned into a staff. हालेलुया। सचमुच वो जो परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य मूसा को ये साहस देता है कि मैं जाऊं और उस सांप को उठा लूं। Amen. आमीन। So that in the coming days you will move forward
in faith, हालेलुया। and you will possess everything, whatever belongs to you in the name of आने Jesus. वाले दिनों में आप सचमुच इसी विश्वास और सामर्थ में बढ़ेंगे और जो कुछ आपका है आप उसे हासिल करेंगे। Hallelujah. आमीन। That's why the name of God has to be revealed. इसी से ये जरूरी है कि परमेश्वर का नाम आपके जीवन में When प्रकट हो God जाए। revealed His name, जब परमेश्वर अपने नाम को प्रकटीकरण करता He है says, I am who I am. और वो कहता है कि मैं वो हूँ जो मैं हूँ। Amen. आमीन। So now through the word of God, understand how God operates in our spirit. हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा इस चीज को आप समझ जाए कि परमेश्वर किस तरह से कार्य करते हैं। Amen. आमीन। And so that we must be ready with the power of the Holy Spirit. जिसके लिए हमें तैयार होना है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ। Amen. आमीन। And God is going to use these mighty hands. हालेलुया। और परमेश्वर इन्हीं सामर्थी हाथों को इस्तेमाल करेंगे। Show your hands, please. अपने Hallelujah. हाथों को दिखाएं। Praise the Lord. अपने Hallelujah. हाथों को Show me your right दिखाएं। hand. Show me your अपने right दाहिने hand. हाथ को दिखाएं। दाहिने हाथ, दाहिने हाथ, Say, दाहिने Lord, हाथ। use my hands. आप कहिए कि प्रभु मेरे हाथ को इस्तेमाल कर। Lord, use my hands. प्रभु मेरे हाथ का इस्तेमाल How कर। you use the hand of Moses like that, Lord, use my hands. जिस तरह से तूने मूसा के हाथ को इस्तेमाल किया, मेरे हाथ को इस्तेमाल कर। God called him. परमेश्वर ने मूसा को बुलाया He said, come into my presence. और कहा मूसा मेरी उपस्थिति में आ। When he came into the presence, he says, you are standing on the holy ground. और जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में आता है तो परमेश्वर कहता है मूसा तू पवित्र स्थान पे खड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Moses said, why you are sending me? अब मूसा बोलता है अरे मुझे क्यों भेज रहे हैं परमेश्वर? God says, I have called you for this पर purpose. परमेश्वर ने कहा मूसा मैंने तो तुझे बुलाया है। I have anointed you for this purpose. मैंने तो तुझे अभिषेक किया है इस कार्य के I have लिए। chosen you for this purpose. मैंने तो तुझे चुन लिया है इस कार्य के लिए। Maybe you don't like it, but I'm liking it. Amen. हो सकता है मूसा तुझे पसंद ना हो परंतु मैंने तो पसंद कर लिया है तुझे। I draw you out of water. मैंने तो तुझे बचपन में ही पानी से निकाल लिया। And today also, church, you have also drawn from the water through the baptism of the Holy Ghost. मेरे प्रियो कलीसिया के लोग आपको भी प्रभु ने सचमुच उस जल से निकाला और उस तरह से आपको पानी का बपतिस्मा दे दिया। Amen. Amen. You all have came out of water. आप सब पानी से निकाले गए हैं। Yes. Yes, my Lord. Yes. Hallelujah. Say everybody, are you came out of water? Yes, कहें कि क्या सचमुच आप पानी से निकाले गए हैं? Amen. हालेलुया। When you came out of your mother's womb, you also came out of the water. याद रखिए आप माँ के गर्भ में भी जब होते हैं तो वहां पे भी पानी होता है और आप पानी से निकलते In हैं। the same manner, उसी तरह से मेरे in the प्रियो, spiritual realm, आत्मिक रूप से भी you also came out of that water where you are baptized, where you have confessed your sins, and you gave your life to Jesus Christ of आत्मिक Nazareth. रूप से भी आप उस पानी से निकलते हैं जहां आप पानी का बपतिस्मा करके एक नया आत्मिक यात्रा शुरू करते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। That's give you the power that God has called you, my brothers. यही तो आपको सामर्थ देता है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। Say everybody, I have been called by God. आप Wave your कहिए hands. कि मैं परमेश्वर के Come द्वारा on, wave your बुलाया hands. गया हूँ। Come on, wave your अपने hands. हाथ को उठा के Oh, मुंह से come on, wave your कहिए hands. Hallelujah. मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हूँ। कहिए Hallelujah. Come on, speak from your mouth. हाले अपने मुख से कहिए। Hey, the devil has to hear it. Hallelujah. शैतान को ये सुनना जरूरी Demons है। has to hear it. दुष्ट की शक्तियों को ये सुनना जरूरी And they है have to run away from your और वो atmosphere. आपके जीवन और वातावरण से भाग They जाएं, have to go away from your place. आपके स्थानों से भाग जाएं। Today you are going to receive healing. आप सचमुच आज अपनी चंगाई को पा रहे हैं। Jesus is coming and sitting by your side. हालेलुया। यीशु मसीह आकर आपके नजदीक बगल में बैठ रहे हैं। Fever is getting disappear right now. जितनों को बुखार है यीशु के नाम से इसी वक्त गायब। Come out, come out, बाहर come निकल out, come गया। out, come out. बुखार की आत्मा आउट। Sickness, come out, leave every बीमारियां family. आपके शरीर को छोड़ के जा रही हैं Because we are waving our hands. क्योंकि हम अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे We हैं। are using our hands. अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे And we हैं are commanding those sickness to leave और now उन in बीमारियों Jesus' को name. यीशु के नाम से आज्ञा दे रहे निकल। Hallelujah. Amen. 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 Are you encouraged in the spirit? क्या आप आत्मा में और आत्मिक रूप से प्रोत्साहित हो रहे हैं ना? Amen. Oh yes. In the same manner, उसी तरह से Moses went to the Egypt मूसा मिस्र देश गया and he went and he brought all the people of Israelites और वहां out of जाके
उसने सचमुच इजरायलियों को बंधुआई से निकाल के लाया। Amen. आमीन। And God has shown His supernatural power by His mighty hand. हालेलुया। परमेश्वर ने अपने अद्भुत अलौकिक सामर्थ को दिखाया अपने हाथ के द्वारा। Hallelujah. Hallelujah. The Bible says they were brought by the hand of the Almighty और God. बाइबल साफ कहती है कि सारे मिस्रियों से इजरायली लोग निकाले गए परमेश्वर के हाथ के When द्वारा। I am will be revealed, और जब मैं हूँ जब आपके जीवन में प्रकट होता है, that means God's hand is coming upon your life. जिसका ये अर्थ है कि परमेश्वर का जो हाथ है वो आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। God's power is coming upon your life. परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में प्रकट हो रहा The है। coming weeks are the power week. Hallelujah. आने वाला जो सप्ताह है वो बहुत सामर्थी है मेरे प्रियो। Hallelujah. Hallelujah. Supernatural power you are going to receive in your spirit. सचमुच एक दिव्य सामर्थ आप अपनी आत्मा में पाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now when they came out of the Egypt, और जब वो सारे लोग मिस्र देश से बाहर निकले, when they crossed the Red Sea, और जब उन्होंने लाल समुद्र को पार किया, the Bible says बाइबल यूं कहती है, they took a travel for 3 days उन्होंने 3 दिन की यात्रा की and they came into the desert of Shur. और उसके बाद शूर के जो रेगिस्तान था, मरुभूमि, उस स्थान पे पहुंचे। And while they were traveling, और जब वो यात्रा कर रहे they थे, were rejoicing and singing and praising God. बड़े आनंद में परमेश्वर की आनंद करते हुए और उनकी महिमा करते जा रहे थे, Because they saw the miracle hand working power of God. क्योंकि उन्होंने वो चमत्कार देखा था कि परमेश्वर के हाथ का सामर्थ्य क्या है। And they started singing what they saw it. और वो आराधना करने लगे, गाने लगे कि जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। And the Bible says और बाइबल कहती है, the pillar of cloud in the daytime and the pillar of fire in the night time was और with them. बाइबल यूं कहती है कि सचमुच बादल दिन के समय चलता था, बादल का खंबा, और रात के समय उस अग्नि का खंबा चलता था। And God was helping Moses to lead the people out of Egypt. और परमेश्वर मूसा को मदद करता था कि लोगों को सचमुच तो लेके बढ़। But हालेलुया। लेकिन the Lord was watching everyone. लेकिन परमेश्वर इस परिस्थिति में हरेक लोगों को बड़े नजदीकता से देख रहे थे। And the Bible says बाइबल यूं कहती when they है, had 3 days of journey, जब उन्होंने 3 दिन की यात्रा की, they were thirsty. फिर उन्हें प्यास लगी। The Bible says they came to a place where there were water, but those water were bitter. बाइबल यूं कहती है कि वो एक ऐसे स्थान पे आए जहां पानी तो मौजूद था, परंतु पानी बहुत ही कड़वा था। The Bible, you know, you are going to read from Exodus chapter 22 onwards. You can go in those. आप पढ़िएगा निर्गमन की पुस्तक में, जहां 15वें अध्याय से 22 से आगे की ओर पढ़िएगा तो आप Now in verse 23 it says, when they came to Mara, they could not drink that water because it was bitter. बाइबल यूं कहती है जब मारा के स्थान पे जब आए तो वहां पे पानी मिला और वो पानी पी नहीं पाए क्योंकि वो बहुत ही कड़वा था। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। They have water, पानी तो मौजूद है, but that water is bitter. लेकिन वो पानी बहुत कड़वा है। I don't know why that water was bitter. I don't know, but that water was bitter. मुझे नहीं मालूम वो पानी क्यों कड़वा था, परंतु पानी कड़वा था। Amen. आमीन। They saw a lot of miracles. उन्होंने बहुत चमत्कार They देखे। saw the Red Sea divided. उन्होंने ये देखा कि लाल समुद्र 20 से 2 भाग हो गया। They saw the disaster in Egypt. और उन्होंने देखा कि मिस्रियों के ऊपर जो परमेश्वर का प्रकोप आया था वो कितना ज्यादा था। They saw that how God has defeated the power of Pharaoh. और उन्होंने ये भी देखा कि परमेश्वर ने फिरौन के उस सामर्थ को कैसे तोड़ दिया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the But when Lord. they came to that water, Mara, लेकिन जब उस स्थान पे वो मारा के स्थान पे आए they saw that the water was bitter. तो उन्हें ये मिलता है कि पानी जो पीने का है वो तो कड़वा है। And they could not able to drink that वो water. पी नहीं पाए उस पानी को। So the Bible says in verse 24, so the people gathered together and complained against Moses. और बाइबल यूं कहती है कि वो सारे लोग एक साथ एकत्रित होके मूसा के खिलाफ बड़बड़ाने लगे। They started grumbling against Moses. मूसा के खिलाफ बड़बड़ करने लगे। And they said, what are we to drink? और ये कहने लगे मूसा को, आप बता कि हम क्या पिएंगे। That means यानी they are saying, Moses, जिसका ये अर्थ है कि वो मूसा को कह रहे हैं, you only came to us
मूसा को ये जता रहे हैं कि तू ही मेरे पास आया, and you only brought us out of तू ही Egypt. हमें बाहर निकाल के लाया। I don't know the God, मैं नहीं जानता तेरा परमेश्वर but कौन I है, need the water to drink पर मुझे तो मीठा पानी पिलाओ, मुझे पानी पीना है, and want to eat. मुझे खाना खाना है। That's why they were complaining. और इसी से वो शिकायत करने लगे। And God was watching. और क्या कर रहा है परमेश्वर? वो सारी चीजों को देख रहा है। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. Praise the Amen. Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Glory to Jesus. प्रभु को महिमा मिले। They were complaining before the law, okay? Not after the law, okay? इस बात को भी आप समझिए मेरे प्रियो कि वो जो शिकायत कर रहे थे व्यवस्था मिलने से पहले। Amen. हालेलुया। Not after the law came, okay? व्यवस्था मिलने के बाद नहीं। Amen. आमीन। Because the name of God has to be revealed, then only क्योंकि the ये law will. जरूरी है कि परमेश्वर का जब नाम का प्रकटीकरण होता है तभी व्यवस्था मिलेगा। Amen. आमीन। They have the right to complain उन्हें भी अधिकार है शिकायत करने का, because they were at the Mara and they could not able to drink that water. और वो ऐसे स्थान पे मौजूद है मारा पे जहाँ पे सचमुच वो पानी पीने लायक नहीं है। Amen. आमीन। So what happened? Then Moses cried out to God. फिर क्या होता है मेरे प्रियो? मूसा सचमुच पुकारता है परमेश्वर को, And the Bible said the Lord showed him a piece of wood. और वहाँ पे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मूसा को एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाता है। Amen. हालेलुया। In the beginning also he saw a staff. और शुरुआत में भी आपने देखा जब परमेश्वर उससे अग्नि के समान बात कर रहे थे तो उसको एक लकड़ी देते हैं, And here also he showed him a wood. और यहाँ पे भी उसको एक लकड़ी ही दिखाते हैं, And he says, throw this wood into the water. और कहते हैं कि इस लकड़ी को पानी में तू फेंक, Amen. फेंक। Hallelujah. Hallelujah. So God used Moses to pick up the things and throw it. Pick up the things and और throw it. Pick परमेश्वर up the ने things and throw it. हालेलुया, परमेश्वर ने मूसा का इस तरह से इस्तेमाल किया कि उठा और फेंक, उठा और फेंक, Yes, of course. उठा और फेंक। In front of Pharaoh, he was used like, take it, throw it. Take it, throw it. Take it, throw it. Hallelujah. यहाँ तक कि फिरौन के सामने भी यही करता रहा मूसा, उठाता रहा फेंकता रहा, उठाता रहा फेंकता रहा। So today you are going to, I'm going to receive it, you take it. I'm going to receive it, you take it. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. आज तो सचमुच वो समय है कि मैं ग्रहण कर रहा हूँ, आप ले लीजिए, Amen. ले लीजिए। And when you are in your room, you say, Lord, give me, I will use it. Give me, I will use it. Hallelujah. Give me, I will use it. आप अपने कब्रों में कह दीजिए परमेश्वर मुझे दे, मैं करता हूँ, Amen. मैं करता हूँ। Praise God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। It means impartation of the Holy Ghost जिसका power. ये अर्थ है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ से आपके जीवन में आ जाना। Amen. आमीन। Through you, your circumstances will change. याद रखिए मेरे प्रियो, आपके ही द्वारा आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। Amen. आमीन। So use your hands, okay? अपने हाथ का इस्तेमाल करें। Praise the Lord. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Are you Yes. enjoying the word of God? क्या friends? आप सचमुच आनंदित और भरपूर हो रहे हैं परमेश्वर के वचन Oh, से? wonderful. Hallelujah. आमीन। Say, I'm going to receive the power from Most High. आप बोल दीजिए कि उस परम प्रधान से मैं उस सामर्थी ताकत को और उस सामर्थी चीज को ले रहा हूँ अपने हाथों में। Now, without prayer, you cannot receive it, ये okay? भी जरूरी है कि बिना प्रार्थना के आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। Pressure will come. आपके ऊपर दबाव तो रहेगा, Complaining will come. लोगों की शिकायत आएगी। Amen. आमीन। Place yourself before Moses. You just place yourself like Moses, okay? अपने आप को मूसा के समान बना के अपने आप को आगे बढ़ा लीजिए। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Say Lord. everybody, I've been called by God. आप कहें कि मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हूँ। I've been called by God. आप कह दीजिए कि मैं परमेश्वर के द्वारा I've बुलाया been गया हूँ। drawn out of water. मैं पानी से निकाला गया हूँ। God has came to me. परमेश्वर मेरे पास आए He हैं। has called me into His presence. उन्होंने मुझे अपनी उपस्थिति में He बुलाया has है। revealed His name. उन्होंने अपने नाम का प्रकटीकरण किया Praise है। the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Glory. Say everybody, I'm God's child. आप कहिए कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। Amen. आमीन। I'm ready to hear the complaint of the people. मैं तैयार हूँ लोगों के उस शिकायत को सुनने के लिए। I'm ready to hear the complaint of my family. मैं तैयार हूँ अपने लोगों के, अपने परिवार के लोगों की शिकायत को सुनने के लिए। Praise the Lord. And I'm going to pray before God. और मैं परमेश्वर के सामने इन विषयों के लिए प्रार्थना करूंगा। Praise God. आमीन। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Are you ready for it? क्या आप तैयार हैं इस चीजों के लिए? Huh? Oh yes.
आप ये मत बोलिए प्रभु ये लोग शिकायत करते हैं मेरे को, बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप बोलिए करने दीजिए, मैं प्रार्थना करूंगा और उसका हल निकालूंगा यीशु के नाम Hallelujah, से। Jesus. That's what the Bible teaches us. यही तो हमें बाइबल सिखाती है। और आप लोग क्या करते हैं, शिकायत जैसी आता है लोग आपको दबाव बनाने लगते हैं, आप भारी बन के बैठ जाते हैं। हो क्या होगा, हो कैसे चलेगा, हो करेगा। कब तक चलेगा ऐसे? तैयार हो जाएं। हैं? हालेलुया। आपकी शिकायत तो मैं कितना सुनता रहता हूँ। मैं तो माथा पकड़ के नहीं बैठ जाता। हालेलुया। अगर मैं माथा पकड़ के बैठ जाऊं तो आपका क्या होगा? आप तो जीआरपीसी में रहेंगे भी नहीं। हाँ? अगर मैं अपना माथा पकड़ लूं और मैं बोलूं कि यार ये बहुत तंग करते हैं तो क्या होगा बताइए? मुझे पता है कि आप तंग करोगे और मैं घुटने टेकूंगा हालेलुया, और मैं Jesus. प्रार्थना करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती मुझे तंग करें। हालेलुया। अगर आपने मुझे तंग किया ना तो याद रखना, मैं तो प्रार्थना करूंगा, आपके ऊपर चमत्कार होगा, पर याद रखना ना आने वाले दिनों में कुछ लोग ऐसे भी तैयार होंगे आपको तंग करने के लिए। आप अगर कम तंग हुए तो सोच लेना आप भी कम तंग होगे। इट्स एन इम्पार्टेशन। हालेलुया। इट्स एन इम्पार्टेशन। कितने लोग समझ गए? यस यस। Praise Lord. हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। Oh wonderful. I'm enjoying. Are you enjoying the word of God or क्या not? सचमुच परमेश्वर के वचन Come का on, आप live. आनंद उठाएं? Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Now the people started complaining against Moses. They said, "What are we going to drink?" उनके लोग मूसा से शिकायत करने लगे कि अब हम क्या पिएंगे। Amen. आमीन। And the Bible says, और बाइबल यूं कहती है, Moses cried out to the Lord, मूसा परमेश्वर के सामने पुकारने लगा and the Lord showed him a piece of wood. और परमेश्वर ने उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाया And he said he threw it into the water. और उस लकड़ी को उठा के मूसा ने उस पानी में फेंक दिया And the water became sweet to और drink. उसी वक्त वो पानी मीठा हो गया। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. I was wondering why he's showing that wood. मैं सोचने लगा कि परमेश्वर ये लकड़ी क्यों दिखा रहा है। Praise the Lord. हालेलुया। God used the hand of Moses. और परमेश्वर क्या कर रहे हैं कि मूसा के हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, But लेकिन he's giving him a wood. और लेकिन उसको दे क्या रहे हैं? लकड़ी दे रहे हैं। Amen. हालेलुया। And today, आज God hand परमेश्वर का हाथ is giving you Jesus. आपको प्रभु यीशु दे रहे हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है when Jesus was ascended to the heaven, जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, he is seated at the right hand of God. वो जाके परमेश्वर पिता के दाहिने ओर हाथ में बैठ गए। Hallelujah. हालेलुया। When the hand of God will come, Lord Jesus will also come. याद रखिए जब आपके जीवन में परमेश्वर का वो हाथ आएगा तो याद रखिए स्वयं यीशु भी आएंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। But in this place, he took the wood. Okay? लेकिन इस स्थान पर मूसा ने क्या किया कि उसने लकड़ी उठाया। When God made covenant जब परमेश्वर ने वाचा बनाया at the time of Abraham, अब्राहम के समय में, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, he gave the sacrifice. और वहाँ पे एक बलि चढ़ा, The lamb was sacrificed. यहाँ पे मेमना बलि चढ़ गया। Amen. आमीन। And at the time of Moses, और मूसा के समय में he shown him a wood. उसको एक लकड़ी दिखाया। Amen. आमीन। That would represent the cross. याद रखिए मेरे प्रिय, ये वही लकड़ी है जो हमारे क्रूस को दिखाता है। Hallelujah. हालेलुया। Today I'm giving you that cross आज मैं आपके जीवन में मसीह यीशु का वो क्रूस देता हूँ, where he died, where he was died, where he paid the price, जहाँ पे उन्होंने अपने प्राण को त्यागा, जहाँ उन्होंने दाम को चुकाया आपके लिए, where he has defeated all the sickness and diseases. जहाँ पे उन्होंने सारे बीमारियों रोगों को खात्मा किया। And that cross is coming into your life. और वही क्रूस आपके जीवन में आ रहा है। Amen. आमीन। On that day, God showed him a wood that would represent in today's world the cross of Jesus. हालेलुया। उस दिन मूसा को परमेश्वर ने वो लकड़ी दिखाया, परंतु आज की तारीख में हम सब के लिए, संपूर्ण संसार के लिए स्वयं यीशु मसीह, उसका वो बलिदान, वो क्रूस है। Amen. Hallelujah. The empty cross.
खाली क्रूस, empty cross, खाली क्रूस, empty cross. बिल्कुल खाली क्रूस, Hallelujah. Hallelujah. Empty cross, बिल्कुल खाली क्रूस, empty cross. बिल्कुल खाली। That is the place where Jesus died. ये वही स्थान था जहाँ पे यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्यागे। That is the wood where Jesus died. ये वही लकड़ी है जहाँ पे यीशु ने अपने प्राण दे दिए। Church must remember where Jesus died. He Yeah. died on the cross. कलीसिया, आपको याद रखना जरूरी है कि यीशु मसीह कहाँ अपने प्राण को देते हैं, उसी क्रूस पर, Where he paid the price. जहाँ उन्होंने दाम चुकाया, Where he has broken the curses. उन्होंने सारे श्रापों को उसी स्थान पे तोड़ा। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And that cross was so close to the wounds of Jesus. और वो क्रूस, वो बहुत नजदीक था यीशु मसीह के जख्मों के I नजदीक था। pray today मैं प्रार्थना करता हूँ आज ही के दिन the cross of Jesus यीशु मसीह का क्रूस will come into your house. आपके घरों पर उतर आए। Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। Just receive that cross. ले लीजिए, ग्रहण कर लीजिए उस क्रूस को। I'm not talking about cross, a gold cross or मैं something. इस विषय में नहीं बात कर रहा हूँ जो लोग बना लेते हैं सोने का और गले में लटकाते, नहीं। Hallelujah. हालेलुया। I'm talking about the wooden cross. मैं उस लकड़ी के क्रूस के विषय में बात कर रहा हूँ, As we are preaching about the cross of Jesus Christ. क्योंकि हम प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह का क्रूस। And we are throwing that cross हालेलुया। into your bitter environment. और उस क्रूस को हम आपके कड़वे माहौल और वातावरण में फेंक देते हैं। The message of cross is coming into the bitter water. याद रखिए, सचमुच क्रूस का संदेश जो है वो आपके कड़वे पानी में उतर रहा है। Hallelujah. Hallelujah, Come on, come on, Jesus. come on. Wave your hands, please. अपने हाथ को दिखाएं हमें। Say that in my hand. Say everybody in my आप hand. कहिए, मेरे हाथ में God has shown me the cross, परमेश्वर ने मुझे क्रूस दिखाया है and I have picked up that cross, और उस क्रूस को मैंने उठा लिया है and I am just throwing into that atmosphere. और उसको मैं अपने माहौल और वातावरण में फेंकता हूँ। I am throwing into that bitterness. मैं उस कड़वाहट में फेंकता हूँ। I am throwing into that argument area. मैं बहस करने वाले स्थान पे फेंकता हूँ। I am throwing into that wicked atmosphere. वो जितना भी दुष्ट का माहौल है मैं वहाँ पे फेंकता हूँ। I am throwing into that sickness and disease. मैं उन बीमारियों और रोगों के ऊपर उस क्रूस को फेंकता हूँ। I am allowing that anointing which is flowing from the cross to go into these places. मैं आज्ञा दे रहा हूँ उस अभिषेक को जो क्रूस से बह रहा है उस स्थानों पे चला जाए। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. In the old covenant, Hallelujah. Moses saw the wood. पुराने नियम में मूसा ने उस लकड़ी को देखा। Amen. आमीन। God said, see that wood और परमेश्वर ने कहा, मूसा उस लकड़ी को देख, and take that wood and throw into that water. उठा उस लकड़ी को और फेंक उस खारे पानी में। I heard your prayers. मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। I saw everything. मैंने सब देख लिया। I know that people are thirsty. मुझे मालूम है लोग प्यासे हैं। I know they have traveled for 3 days. मुझे मालूम है 3 दिन से वो यात्रा कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Because I am who I am. क्योंकि मैं जो हूँ मैं वो हूँ। Because when I will reveal, I only reveal after the 3rd day. क्योंकि जब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ मैं तभी करता हूँ, वो होता है तीसरा दिन। Hallelujah. Glory to Jesus. Because God in His mind that there will be a covenant which is going to come where the Son of God will be laid on the cross and on the 3rd day He will be resurrected. क्योंकि Hallelujah. परमेश्वर के दिमाग में था कि वो जो मेरा पुत्र है जब वो मरेगा और तीसरे दिन ही वो मरे हुए से जी उठेगा। Amen. आमीन। And after the 3rd day, और तीसरे दिन के बाद you know what happened? आपको मालूम When क्या He हुआ? came and appeared to the disciples, और जब यीशु मसीह आकर अपने चेलों के सामने प्रकट होते हैं, He showed His wounds. अपने जख्मों को दिखाते हैं He said, these are my wounds. और दिखाते हैं अपने हथेली के जख्मों को कि देख ये मेरे जख्म हैं। Hallelujah. हालेलुया। In the Old Testament, पुराने नियम में when the hand of God was there, जब परमेश्वर का वो हाथ था, there was no wound. उस हाथ में कोई जख्म नहीं था। But in the new covenant, लेकिन नई वाचा में when the Son of God came into जब this world, परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आता है, His hands were wounded. उसका हाथ जख्मी था, His hands were nailed. उसका हाथ छिदा हुआ था, His hands were nailed. उसका हाथ छिदा हुआ था, That shows us
जो हमें ये दर्शाता है, that when he was there in the world, जो हमें दर्शाता है कि जब वो इस संसार में मौजूद थे, he laid upon everybody's life. और उन्होंने अपने उसी छिदे हुए हाथों को हर एक के ऊपर रख दिया। And the Bible says everyone were healed. और बाइबल कहती है हर एक लोगों ने अपनी चंगाई को पा लिया। He healed the sick people, उन्होंने बीमारियों को, बीमार से ग्रसित लोगों को चंगा किया। those who had came before him. जो लोग उनके सामने आए, Hallelujah. हालेलुया, They said, Lord, please heal us. उन्होंने कहा प्रभु हमें चंगाई दे दे। Hallelujah. हालेलुया। They begged that lay your hands upon us. उन्होंने कहा प्रभु तू अपनी दया को दिखाकर अपने हाथ को हमारे ऊपर रख दे। And that hand was nailed. और वही हाथ जो लोगों को चंगाई दे रहा था, वो सचमुच छिदा गया। For whom? किसके लिए? For whom? किसके लिए? For whom? किसके लिए? So that when he will go to the heaven, ताकि जब वो स्वर्ग में जाएं, the nail hands वो छिदा हुआ हाथ will come upon everybody's हर life. एक के ऊपर आ जाए, That wood will come upon everybody. वो लकड़ी हर एक के ऊपर आ जाए, That cross will come everybody. वो क्रूस हर एक के ऊपर आ So that जाए, people will remember that cross. ताकि जब लोग उस क्रूस को याद करें, That curses will be broken. उनकी श्राप टूट जाए, That sickness will disappear. बीमारियां भाग जाएं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And today, और आज मेरे प्रियो, tonight he will come and he will lay his hands upon you. आज ही की रात्रि आकर वो आपके ऊपर उसी छिदे हुए हाथ को रख देंगे। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Amen. आमीन। And the moment when he laid his hands, और जैसे ही उन्होंने अपने उस हाथ को रखा, the people were healed. लोग चंगे हो In गए। the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, the wood when it came into the water, जब वो लकड़ी उस जल में आया the water turned into sweetness. और वो कड़वा पानी मीठा हो गया। And the Bible और says, बाइबल यूं कहती है, that particular day, उस खास दिन Lord gave him a ruling and instruction परमेश्वर ने वहां पर एक आज्ञा और एक निर्देशन दिया and put them to test. और वहां पर एक परीक्षा ली। And then he said, और फिर कहा, if you listen carefully to the Lord, अगर तू सचमुच बड़े ध्यान पूर्वक यहोवा की बातों को सुनेगा your God, and do what is right in his eyes, और तेरे परमेश्वर की बातों को सुनकर वही करेगा जो उनके आंखों के सामने सही है। Amen. आमीन। And if you will pay attention to his commands और उनकी जितनी भी आज्ञाओं पे अगर तू ध्यान देगा and keep all his decrees, और जितनी भी जो उन्होंने व्यवस्था बना के जो दी है उसे अगर तू मान कर चलेगा, the sickness which I brought to the Egyptian, it will not come to your life, for I am the Lord who heals you. और यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं वो बीमारियां जो मैं मिस्रियों के ऊपर लेके आया मैं तेरे ऊपर नहीं लाऊंगा, और मैं वो यहोवा परमेश्वर हूँ जो चंगा करता है। The Lord revealed himself. यहाँ पर फिर से यहोवा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया Jehovah Rapha, he revealed और himself. उन्होंने इस बात को प्रकट किया कि मैं हूँ यहोवा राफा, चंगा करने वाला He said, परमेश्वर। you listen carefully तू बड़े ध्यान से सुन, to the Lord and God and do what is right in his eyes. तो परमेश्वर की वाणी को, उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन और जो सही है उनकी नजरों में उसको कर। That means lead a righteous life. जिसका ये अर्थ है कि एक धर्मी का जीवन आप व्यतीत करें। How you will lead a righteous life? कैसे आप धर्मी का जीवन व्यतीत करेंगे? Fellowship with the Holy Spirit. जिसका ये अर्थ है कि आपकी संगति पवित्र आत्मा के साथ होगी। Fellowship in the house of God. परमेश्वर के भवन में आपकी संगति And जरूरी है fellowship with the believers. और आपकी संगति विश्वासियों के साथ होनी जरूरी है। Amen. आमीन। That's what he said in those days. और यही तो परमेश्वर ने मूसा के दिनों में भी कहा। He revealed his name, I am Jehovah Rapha. और उस दिन अपने नाम को प्रकट किया, मैं ही यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। Hallelujah. Hallelujah. I am the Lord who heals you. मैं वो परमेश्वर हूँ जो चंगाई देता है। Amen. Hallelujah. I am the Lord who removed the sickness. मैं वो परमेश्वर जो बीमारियों को दूर करता That's हूँ। what the God says in his word. यही तो परमेश्वर अपने वचनों में कहते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. And thereafter the Bible says, और उसके बाद बाइबल यूं कहती when है, you come to verse 27, और जब आप 27 वचन में आते they हैं came to Elim. और एक स्थान पे आते हैं, उसका नाम है एलीम। And there were 12 springs और वहां पे 12 मीठे पानी का सोता है and 70 palm trees. और 70 वहां पे खजूर के पेड़ मौजूद हैं। And they camped over that waters. सारे लोग वहां पे आकर एकत्रित हो जाते हैं उस स्थान पर। Praise the Lord.
स्थिर हो जाते हैं, ठहर जाते हैं। When God heals the people, जब परमेश्वर लोगों को चंगाई देते हैं, He bring them to the house of God. याद रखिए वो उनको लाते हैं अपने भवन में, And He opened the 12 springs. और वो 12 पानी के मीठे सोतों को खोल देते हैं। Amen. आमीन। And He put them under 70 palm trees. और उन्हें उस 70 सचमुच खजूर के पेड़ के आशीष के नीचे ले आते हैं। Hallelujah. हालेलुया। He put them under the care of 70 prosperous, flourished people. और परमेश्वर क्या करते हैं, अपने लोगों को 70 आशीषित और बहुतायत से बढ़ने वाले लोगों के उस संरक्षण में, उस देखभाल में लाके खड़ा कर देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. That's how the church operates. इसी तरह से तो कलीसिया चलती है। Where they were after that receiving the healing, आपको मालूम अपने चंगाई के बाद वो लोग कहाँ थे? they were in Elim. वो एलीम में आके ठहरे। What do you mean by Elim? एलीम का क्या अर्थ होता है? Elim means the house of God. एलीम का अर्थ होता है परमेश्वर का भवन। Amen. Yes. आमीन। In today's world, okay? आज के संसार में They were camped in a place where God was raising righteous people. वो उस स्थान पे लाके ठहराए गए जहाँ पे परमेश्वर धर्मी लोगों को बना रहे थे और तैयार कर रहे थे। Amen. आमीन। 70 palm trees means, the Bible says in Psalm 92 and verse 12, the righteous shall flourish like the palm trees. और बाइबल कहती है, भजन संहिता उसके 92 अध्याय के 12 वचन में कहते हैं कि परमेश्वर सचमुच लोगों को एक धर्मी की तरह, यानी धर्मी बनाएंगे उस पाम ट्री के समान। Yes. हालेलुया। And I believe, और मैं विश्वास करता हूँ, hallelujah, you हालेलुया, will be like a palm tree. मैं सचमुच विश्वास करता हूँ कि आप सचमुच उस पाम ट्री की And तरह people हो will come. जाएं। और लोग आपके पास आएंगे, They will take shadow on your way. और वो आपके पत्तों के नीचे, यानी आपके हाथों के नीचे आशीष को पाएंगे। Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Your Jesus. hands will be so powerful that you will be just like a palm tree. Hallelujah. आपके हाथ इतने सामर्थ्य हो जाएंगे कि आपके हाथ उस खजूर के पत्तों के समान होंगे, जो लोगों को खजूर के पेड़ के समान होंगे, जो आप लोगों को आशीष देते हैं। And no one can shake your hand. Hallelujah. हालेलुया। और कोई भी आपके हाथों को हिला नहीं सकता। Praise the Lord. हालेलुया। Amen. हालेलुया। Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हैं? Do you believe क्या आप this? विश्वास करते Do you हैं? believe this miracle? क्या आप विश्वास करते हैं कि ये Do you चमत्कार आपके believe God जीवन में is होगा? going to flow that river of healing in your life? क्या आप विश्वास करते हैं कि चंगाई का नदी परमेश्वर आपके जीवन में बहा देगा? Amen. आमीन। Because He is the Lord who heals you. क्योंकि यही तो वो परमेश्वर है जो चंगा करता है। And the Bible says, और बाइबल कहती है, Psalm 147 and verse 2, भजन संहिता 147 अध्याय के दूसरे वचन He में, heals the broken heart. हालेलुया, वो चंगा करता है, चंगाई देता है जिनका हृदय टूटा हुआ है। Amen. हालेलुया। And bandage the wounds. और उनके जख्मों को मरहम पट्टी करता है। Hallelujah. हालेलुया। Because He is the Lord, your shepherd also. हालेलुया, क्योंकि ये तो आपका जो परमेश्वर है वो आपका चरवाहा भी है। Amen. आमीन। Praise God. Thank you, Jesus. He is the Lord, your shepherd. क्योंकि ये वही परमेश्वर प्रभु है जो आपका चरवाहा है। Amen. आमीन। Because you are in the house of God. क्योंकि आप तो परमेश्वर के भवन में मौजूद है। That's how the kingdom of God operates. इसी तरह से तो परमेश्वर का राज्य कार्य करता है। Amen. आमीन। He's going to turn your bitterness into sweetness. याद रखिए मेरे प्रियो, आपके जीवन के हर एक कड़वाहट को सचमुच प्रभु उस मिठास में बदल दे। I prophesy मैं भविष्यवाणी करता हूँ that your bitterness is going to turn into sweetness. आपका जीवन का कड़वाहट मिठास में बदल जाएगा। Amen. Do आमीन। you receive it? क्या आप उसे ग्रहण करते हैं? Are you going to receive it? क्या आप उसे ग्रहण करते हैं? Come on, receive it. ले लीजिए, Receive it. ले The लीजिए, river is flowing. क्योंकि वो नदी बह रही The है। river of healing is flowing. ओ चंगाई की नदी बह रही The flood है। of healing is flowing. सचमुच चंगाई का जो बाढ़ का नदी बह रहा है। Sickness and disease will go. हर एक बीमारियां, रोग आपके शरीर को छोड़ के चली जाएंगी। The money which you are spending on
doctors and on medicine will go away from in the name of Jesus. आपके जितने भी धन बीमारियों में खर्च हो रहे हैं यीशु के नाम से बचा लिए I जाएंगे। cancel those money in the name of Jesus so that those money will be saved in the mighty name of Jesus. मैं Hallelujah. प्रार्थना करता हूँ जो बीमारियों में धन खर्च हो रहे हैं यीशु के नाम से वो बच जाएं। Hallelujah. How many of you believe it? कितने लोग विश्वास करते हैं? Hallelujah. कितने लोग विश्वास करते हैं? Makashoko riba raba raba raba. If today the Lord says, I am the Lord who heals you, अगर आज वो परमेश्वर ये कहता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो चंगाई देता हूँ, that means your medical bills are going to come low. हालेलुया, जिसका ये अर्थ है कि अब बीमारियों में आपके पैसे, आपके धन खर्च नहीं होंगे। Amen. आमीन। कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी. Praise God. Hallelujah. Amen. हालेलुया। Maybe you are spending 1,000 rupees for Yes. your medical expenses. It will come to zero in Jesus' name. हो सकता है 1000 या कुछ और भी खर्च करते सारे पैसे बच जाएंगे, 1 रुपया खर्च ना होगा। Praise the Lord. हालेलुया। That is how you are trampling the wicked spirit. जिसका ये अर्थ है कि इसी तरह से शैतान और बीमारियों की आत्मा को आप अपने पैरों तले कुचल रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Because in your hand there is a cross. एक क्रूस है। Amen. हालेलुया। That cross वो क्रूस gives you the power आपको वो सामर्थ देता है to reveal the name of Jesus यीशु के नाम को प्रकट करने के लिए, and tell you आपको बताने के लिए that the Lord Jesus paid the price on the cross. यीशु मसीह ने उस क्रूस पर दाम चुकाया है। He was whipped. वो सचमुच कोड़े का उसने मार खाया। Hallelujah. हालेलुया। So that we could be healed. ताकि हम अपने चंगाई को पाले। Amen. आमीन। He was pierced for our transgression वो सचमुच हमारे अधर्म के कार्यों के लिए कुचला गया, and crushed for our sins. हमारे पापों के लिए कुचला गया। He was beaten so that we will be healed. वो सचमुच उसे मारा गया ताकि हम चंगे हो जाएं। And he was whipped so we could be healed. उसने कोड़े के मार इसलिए खाए कि हम चंगे हो जाएं। That's why the Bible says, by his wounds we all are healed. इसी से तो बाइबल कहती है यीशु मसीह के जख्मों के कारण हम चंगे हो गए। I believe in the Lord Jesus. मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर। Hallelujah. Hallelujah. He is the Lord who healeth me. क्योंकि ये वही प्रभु है जो मुझे चंगा करता है। And I believe it. और मैं विश्वास करता That हूँ, he paid the price on the cross. मैं विश्वास करता हूँ कि उन्होंने दाम चुकाया है क्रूस पर। Amen. Hallelujah. When you know the price, जब आपको मालूम है कि क्या दाम चुकाया, that means you are throwing that stick into that water. जिसका ये अर्थ है कि जब आपको ये मालूम हो जाता है तो उस क्रूस को आप उस नदी में फेंक रहे हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. आमीन। And using the name of Jesus. यीशु के नाम का इस्तेमाल करते हुए Before he was taken up to the heaven, he said, use my name. जब वो स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले उन्होंने अपने चेलों को साफ कहा, मेरे नाम का इस्तेमाल He करना। gave the power to the church and he told the church that use my name and cast out every sickness and diseases, Hallelujah. and every sickness will go in my name. उन्होंने कलीसिया को ये सामर्थ दी कि मेरे नाम का इस्तेमाल करना, मेरे नाम में जो सामर्थ है हर एक बीमारियों को, रोगों को निकाल के फेंक देगा। Hallelujah. Hallelujah. Today I declare the name of Jesus. आज मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम का। And I decree the name of Jesus in your life. मैं सचमुच उस नाम जिसमें सामर्थ है, उस नाम के अधिकार को आपके जीवन में देता हूँ। And I declare it and I decree that you are healed in the name of Jesus. मैं घोषणा करता हूँ उस यीशु मसीह के सामर्थी नाम को, You are healed. आप चंगे हो गए। Amen. आमीन। You are healed. आप चंगे हो गए। Your bitter environment is turning into sweet environment. आपके कड़वे माहौल और वातावरण मिठास में बदल रहे हैं। Amen. आमीन। Your grief and sorrow will turn into joy. आपके दुख और तकलीफ आनंद में बदल जाएंगे। Your poverty is turning into richness. आपकी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। Amen. आमीन। Your poverty is turning into blessing. आपकी गरीबी आशीष में बदल गई है। And your disobedience will turn into obedience. आपकी जितनी भी अनाज्ञाकारिता आज्ञाकारिता में बदल गई है। Amen. आमीन। And your little will turn into abundance. आपका जो थोड़ा है वो बहुतायत में बदल गया है। Come on, wave your Glory hands. to Jesus. Come on, wave your hands. अपने Hallelujah. हाथ को हिला के सचमुच Come on, wave your hands. Hallelujah. Makashoko riba rasaka basoro robo robo robo. Riba shandana maraba. Hallelujah. The Lord is revealing His name.
सचमुच वो जो प्रभु यहोवा परमेश्वर है वो अपने नाम को प्रकट कर रहा है। Amen. He revealed his name. हालेलुया, उसने अपने नाम को प्रकट He किया। revealed his name to the people of Israel. उसने इजरायली लोगों को अपने नाम का प्रकटीकरण किया And they camped in that place. और वो उस स्थान पे आके ठहर गए And they got the commands. और उन्हें वो आज्ञाएं मिली And they started working on those words. और उन वचनों पे वो कार्य करने लगे। Hallelujah. हालेलुया। That's how for them the church was began. और उनके लिए सचमुच वो कलीसिया, वो संगति का शुरुआत हो गया। Amen. आमीन। And the Bible says और बाइबल कहती they है were camped in that place where 70 palm trees and 12 springs. वो उस स्थान पे आके ठहर गए जहाँ पे 12 मीठे पानी का सोता था और 70 खजूर के आशीषित पेड़ थे। Now listen, nobody knows. They were never thought that they are going to camp into such place. किसी ने नहीं सोचा था कि वो ऐसे स्थान पे आके ठहर जाएंगे। I prophesy मैं भविष्यवाणी करता हूँ, and I declare and मैं decree घोषणा करता हूँ इस बात का, that very soon you are going to prosper. बहुत जल्द आप उन्नति को, तरक्की को, आशीष को देखेंगे। Maybe you are in Mara. हो सकता है आप उस मारा यानी कड़वे पानी के स्थान पे है। That Mara will turn into sweetness very soon. आपके जीवन का हर एक कड़वाहट मिठास में बदल जाएगा। In today's service, आज की सभा के द्वारा your bitterness will turn into sweetness. आपकी कड़वाहट मिठास में बदल जाएगी। Amen. आमीन। Don't give up. बिल्कुल मत हारिए। Cry like Moses. एक मूसा के समान आंसू को बहाइए। Pray to God. परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। The Holy Spirit will show you the cross. सचमुच पवित्र आत्मा उस क्रूस को आपको दिखा देगा। Trust in the Lord. विश्वास करो प्रभु यीशु पे। Do not trust in man, trust in the Lord. मनुष्यों पे मत विश्वास करिए, प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए। Trust in the Lord. प्रभु पे विश्वास कीजिए। Moses on that particular day trusted in the Lord. उस खास दिन पे मूसा ने परमेश्वर पे विश्वास किया That's what Lord liked it. और यही तो परमेश्वर ने उसे पसंद And किया then he revealed his name. और अपने नाम को प्रकट कर दिया And he says, I am the Lord who healeth. और कह दिया मैं ही वही यहोवा परमेश्वर हूँ जो चंगा करता है। When his name is revealed, और जब उसका नाम खुला automatically floodgates are open. अपने आप स्वर्ग के आशीष के वो समुद्र और नदी खुल गए। They were at that water which are not able to drink, but they came to a place where there was enough of water. वो ऐसे स्थान पे थे जहाँ का माहौल, जहाँ की परिस्थिति, जहाँ की हर चीज कड़वाहट थी और वो ऐसे स्थान में लाए गए जहाँ मिठास ही मिठास था। Oh, praise the Lord. हालेलुया। I pray that sweet spirit will rule your life. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में मिठास की आत्मा ही कार्य करे। Amen. आमीन। Amen. Say everybody, hallelujah. आप कहें Say सब everybody, लोग, the Lord is going to heal our land. आप कहें कि परमेश्वर मेरी जमीनों की, मेरे शरीरों की, मेरी हर एक चीजों की चंगाई दे। Lord is going to heal your house. परमेश्वर आपके घर को चंगाई दे। I declare and I release that healing river into your family. मैं घोषणा करता हूँ कि वो चंगाई की नदी आपके परिवार में आ जाए। Hallelujah. Close your eyes and I am going to pray now. अपने आंखों को बंद कीजिए, मैं इसी वक्त प्रार्थना And there करूंगा। afterwards we are going to enter into the anointing. इसके Hallelujah. बाद हम अभिषेक की सभा की ओर जाएंगे। My brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहन, you have heard the message. आपने संदेश को सुना। If you are looking for an healing, अगर आप चंगाई को पाना चाहते if you are हैं, looking that your sick body will be healed, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बीमार शरीर चंगा हो जाए, receive the Lord Jesus in your प्रभु life. यीशु को ग्रहण कर लीजिए। Hallelujah. हालेलुया। And receive your healing. और अपने चंगाई को ले लीजिए। आमीन। If you will call him, अगर आप उनको पुकारेंगे, he will come to your door. वो आपके दरवाजे के पास He will आएंगे, come into your bed. आपके बिस्तर के पास He will आएंगे, come into your sick body. आपके बीमार शरीर में आ जाएंगे। Just call him. आप उनको पुकारिए, Give your life. अपना जीवन यीशु मसीह को दे दीजिए। Tell Lord Jesus, I आप want to be, कहिए, प्रभु यीशु I want healing. मुझे चंगाई चाहिए। I want to come out of this hospital. मैं इस अस्पताल से बाहर निकलना चाहता I हूँ। want to come out of this deadly sickness and disease. ये जितने भी मरने वाली बीमारियां और परिस्थितियां, उससे मुझे बाहर निकलना I है। want to come out of this medical bills. और ये जितने भी अस्पताल के जो बिल हैं, उससे, खर्चों से मुझे आजाद कर। I want to come out of this medicines. मैं इन बीमारियों और दवाओं से बाहर निकलना Lord, चाहता हूँ। please heal me. प्रभु मुझे चंगा कर दे। He will surely come and he will heal you. वो निश्चय आके आपको चंगाई Believe दे। me, my brother and sister. विश्वास कीजिए
लीजिए मेरे प्रिय भाई और The बहन, Holy Spirit has told me पवित्र आत्मा ने मुझसे साफ कहा that He is going to heal many sick वो people. बहुत बीमार लोगों को चंगाई देंगे। That's why I told you that please invite the sick people so that we will pray for इसी them. से मैंने आपको सभा के पहले ही कहा था कि जितने भी बीमार लोग हैं आप उन्हें आमंत्रित कीजिए ताकि वो अपने चंगाई को पाएं। Come on, close your eyes. आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। Now let's church. I'm going to pray for you individually after this because this message is going all over the world. So let's church come on in spirit and let us pray for a healing power to flow into everybody's life. कलीसिया के सारे जन एक आत्मा में हो जाए ताकि सचमुच वो चंगाई की नदी बहे और विश्व में, संसार में और आप सबके जीवन में उतर आए। Amen. Hallelujah. Let's close our eyes and I'm going to आइए pray. आइए हम अपने आंखों को बंद Oh करें और Shaba प्रार्थना Riba करें। Kota Raba Sendere Bere Karabaraba Riba Shondona ओला Marika. रमाशिया थारा मा Father, we thank you, we love you. धन्यवाद करते पिता, हम We तेरे नाम- magnify you, Lord Jesus. हालेलुया। मैं सचमुच तेरे नाम को महिमा देता हूँ प्रभु यीशु। You are Jehovah Rapha, तो सचमुच यहोवा राफा चंगा करने वाला the परमेश्वर one who heals us. जो चंगाई देता है हमें। You revealed to Moses and the people of तूने Israel मूसा को इस बात का प्रकटीकरण का that किया you are the God who healeth the sick people. क्योंकि तू वही परमेश्वर है जो बीमारियों को चंगाई देता And है। today we receive this word. आज हम इस वचन को ग्रहण करते हैं। You heal the broken heart and bandage the wounds. आप टूटे हृदय को भी जोड़ के उन्हें मरहम पट्टी करते हैं According to your word. तेरे वचन के अनुसार। And your word says He sent forth His word and healed us. और आपका वचन ये भी कहता है कि आप अपने वचन को भेज के चंगाई देते हैं। And your word says, आपका वचन कहता pray है, for one another so that you may be healed. आपका वचन ये भी कहता है कि एक दूसरे के जब तुम प्रार्थना करोगे तो तुम चंगे हो जाओगे। And Lord Jesus, when you are there in the world, प्रभु यीशु जब तू इस संसार में था, people came to you. लोग तेरे पास आए, People came to you, Lord. लोग तेरे पास आए, People came to you, लोग Lord. तेरे पास आए। Today, whoever is hearing my voice and coming to you, आज Lord, जो कोई भी प्रभु तेरी आवाज को सुनता है और जो तेरे पास आता है, Lord, lay your hands and heal the sick people. अपने हाथों को तू रख दे और उन बीमारियों को तू चंगाई दे दे। And I know, my Savior, that you are going to heal all. और मुझे मालूम है मेरे चंगा करने वाले, बचाने वाले परमेश्वर तू सबको चंगाई देगा। You will heal all. तू सबको चंगाई देगा। You will heal all. तू सबको चंगाई देगा। Whoever is watching me, they will receive healing. जो Hallelujah. कोई भी मुझे भी इसी वक्त देख रहा है वो अपनी चंगाई को इसी वक्त I पाएगा। declare the name of Jesus. मैं यीशु मसीह के नाम का घोषणा करता हूँ। And I cast out those sickness in the name of Jesus मैं away उन from your bed बीमारियों now. को उनके जीवन से निकलने के लिए आज्ञा देता हूँ। I command you, evil spirit, to lose your grip from there in the हर name एक of Jesus. दुष्ट की शक्तियाँ उनके जीवन से तू निकल जा। Sickness, go away from in the name of बीमारियाँ उनके जीवन से निकल जा। Sickness, leave that body in Jesus' हर name. एक बीमारियाँ उनके शरीर को छोड़ के चला जा। Sickness, leave everybody's हर life. एक बीमारियाँ उनके शरीर को छोड़ के चला जा। Darkness will go away in Jesus' name. अंधकार चली जाए यीशु के नाम से। Bitterness will go in the name of Jesus. कड़वाहट निकल जाए यीशु के नाम Let से। sweetness will come in Jesus' name. मिठास आ जाए उनके जीवन में यीशु के नाम Every से। sorrow will turn into हर joy. एक दुख आनंद में बदल Let the जाए। joy will be multiplied in their life. सचमुच आनंद उनके जीवन में बढ़ता जाए। Father, I pray in the name of Jesus. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम I से। ask whoever is hearing my voice, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, कहता हूँ कि जो fill कोई them मेरी with your आवाज Holy Spirit. उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे। Fill them with your Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर दे। Let your power will come and touch everybody. सचमुच तेरा सामर्थ्य आए उन्हें छू ले। Touch everybody. हर एक को छू ले। Let your touch of healing will flow. सचमुच तेरे चंगाई का स्पर्श उनके शरीर में उतर आए। Touch every sick body. हर एक बीमार शरीर को तू छू ले। Receive the touch of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के स्पर्श को ले ले। Receive the touch of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के स्पर्श को ले ले। Sickness is going. बीमारियां जा रही हैं। Diseases are going. हर एक रोग जा रहे हैं। Wickedness is going. दुष्टाई जा रही हैं। Evil spirit are going. दुष्ट की शक्तियां जा रही हैं। Every type of spirit which is not from God is going. हर एक वैसी आत्माएं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है निकल के जा रही हैं। Every spirit which never believes the Son of God, Jesus Christ, is going in Jesus' हर एक name. वो आत्माएं जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करती वो निकल के जा रही है। Those spirits which are against the Lord Jesus, I command those spirits to leave now in Jesus' name. वैसी आत्माएं जो प्रभु यीशु के खिलाफ है इन आत्मा को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से निकल। Every antichrist spirit come out in Jesus' name. यीशु के खिलाफ कार्य करने वाली आत्मा यीशु के नाम से निकल। Every spirit which is anti-church come
out in Jesus' name. हर एक ऐसी आत्माएं जो कलीसिया के खिलाफ कार्य करती है, निकल। Hallelujah. Hallelujah. Every spirit which is working against the families of God, come out in Jesus' name. हर एक ऐसी आत्मा जो परमेश्वर के लोगों के परिवार के खिलाफ कार्य करती है, निकल जाए यीशु के नाम से। God is opening that door. परमेश्वर उस दरवाजे को खोल रहे And हैं। His presence is coming. उनकी उपस्थिति आ रही His है। presence is coming upon उनकी everybody. उपस्थिति हर एक के His ऊपर आ presence रही is है। coming upon हर everybody. एक के ऊपर Receive that beautiful presence of उसकी Jesus. सुंदर उपस्थिति को ले लीजिए। Receive the presence of Jesus. यीशु की सुंदर उपस्थिति को ले Receive the लीजिए। presence of Jesus. यीशु की सुंदर उपस्थिति को I ले release लीजिए। that cross of Jesus. यीशु के क्रूस को मैं तेरे जीवन में भेजता I हूँ। release the blood of Jesus. यीशु के लहू को मैं भेजता I हूँ। release the nail hands of यीशु के Jesus. छिदे हुए हाथ को I release भेजता the हूँ। wounded hands of यीशु Jesus. के छिदे हुए हाथ को I release भेजता the हूँ। name of Jehovah Rapha in your life in Jesus' मैं name. यहोवा राफा जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसको मैं तेरे जीवन में भेजता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, my Father. धन्यवाद मेरे पिता। You revealed your name, Jehovah Ireh. तूने अपने नाम का प्रकटीकरण किया, यहोवा ईरे। And today you have revealed the name Jehovah Rapha. आज तूने अपने दूसरे नाम का प्रकटीकरण किया, यहोवा राफा, चंगा करने I वाला pray, परमेश्वर। Lord मैं Jesus, प्रार्थना करता हूँ प्रभु those who यीशु, are praying for their jobs, जो लोग अपने नौकरियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह provide them a good job. उन्हें एक अच्छी नौकरी दे। And those who are looking their job to be protected, और जो चाहते हैं उनकी नौकरियां बचाई जाए, Father, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ In पिता, these days, इन दिनों में you are going to protect their job. उनकी नौकरियों को आप बचा के रखेंगे। Father, पिता, I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ let their finances will be doubled and tripled. उनकी धन प्रभु यीशु के नाम से दुगुनी चौगुनी हो जाए। Every bank loans, हर एक बैंक का जो लोन है, every credit card loans, हर एक क्रेडिट कार्ड का जो कर्ज है, they shall pay it, Lord. वो देने के लिए प्रभु उन्हें तैयार कर दीजिए। God, give them everything, Lord. उन्हें हर कुछ दीजिए प्रभु। Give them the money so that they can clear all the उन्हें वो bills. सारी आर्थिक आशीष दीजिए कि वो सारे कर्जों से मुक्ति पाएं। Father, I pray in the name of पिता, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Thank you, Father, धन्यवाद that you पिता, are hearing our prayers. आप हमारे प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। Because your word says, when righteous man will pray, Hallelujah. his prayer will be powerful and effective. क्योंकि आपका वचन कहता है जब धर्मी जन प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना सामर्थी और असरदायी होते हैं। In righteousness of God, we pray this prayer, O Lord. परमेश्वर की धार्मिकता में इन प्रार्थनाओं को हम करते हैं। And I declare healing मैं upon them. घोषणा करता हूँ चंगाई हर एक के ऊपर। Release that, Lord. उसे भेज दे मेरे प्रभु। Thank you, Father, for healing them. धन्यवाद प्रभु उन्हें चंगाई देने के In लिए। Jesus' mighty name we यीशु pray. के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. आमीन। I hope that you are healed. मैं विश्वास करता हूँ कि आप चंगे हो गए हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। And God bless you and He will prosper you in the mighty name of Jesus. प्रभु आशीष दे और आपको तरक्की और उन्नति की ओर ले जाए अपने सामर्थी नाम में। And remember that Jesus heals you. याद रखिए सिर्फ प्रभु यीशु ही आपको चंगाई देते हैं। Jehovah Rapha heals you. जिसका नाम है यहोवा राफा, चंगा करने वाला The one who परमेश्वर। says, I am the Lord who healeth. और जो वो कहता है कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो मैं चंगाई देता हूँ। Amen. आमीन। Amen. Amen.